everyone, welcome to part 2 where I explain you basics of contract. If you have not watched part 1 first, go and watch that and let's continue with the part ahead of you. In an earlier video, we learned about the definitions, the essentials of an offer, kinds of offer and other things. And now we are learning about proposal and essentials of a valid proposal, an agreement and essentials of a valid agreement too. And other things which will come across. Okay, so now we'll learn about the proposal. हम लोग ने definition पहले ही tackle कर लिया है, but we'll read once again. When one person signifies to another his willingness to or abstain from doing anything with a view to obtain that assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Means when A is saying to B that he has a willingness to do, or he's saying that I am not going to do this so that it might benefit you. Okay, it might be anything. Okay, this is like, it can be anything. So what is A trying to do here? He's trying to get the acceptance of B to agreeing him to whatever A's willingness to do or not to do is there. Okay, and this act of whatever A is doing is known as proposal. Okay, so now let's understand essentials of valid proposal. This is kind of a mind map here which is easier to tackle. Okay, let's understand now. Signified in any manner. कौन से मैनर में होना चाहिए? ओरली होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, साइंस, जेस्चर्स, एनीथिंग. सो व्हेन अ पर्सन इज गिविंग अ प्रपोजल आउट, वो कैसे हो सकता है ना, वो लिखित भी हो सकता है, वो किसी के सामने से बोला भी होगा कि अच्छा ये मैं बेचना चाहता हूँ, आप लोगे क्या, आपको चाहिए क्या. दिस इज ऑल्सो एन ओरली मेकिंग ऑफ अ प्रपोजल. साइंस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, ऑफर्स जैसे हम बात करते हैं, ऑक्शंस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. इन एनी मैनर इट कैन बी सिग्निफाइड. कम्युनिकेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट कि ओ इशारे में बात हो गया, नहीं. इट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रपोजल. ओके, second thing is, like first thing is, and second thing is to do or abstain from doing an act. It should be an act or an omission. Okay, the proposal should mention if it is whether an act or it is an omission of an act. That's it. Okay, now the third is made with an intention of obtaining the assent of the other. The essential of a valid proposal is actually the definition itself. It's nothing else but the definition itself. Am I right? Okay, it is saying here, if you see, mere statement, nature of the request or question asked, made with an intention of obtaining the assent of that other. It should not be just a statement like मैं ये करने वाला हूँ. इट शुड बी नेचर ऑफ रिक्वेस्ट और क्वेश्चन. क्या मैं ये करूँ, क्या आपका विलिंगनेस है, आप एक्सेप्ट करोगे क्या ये. एसेंट इज एक्सेप्टेंस. ओके, सो यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अदर. सो वो आस्किंग क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. मतलब जो प्रपोज कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ऑफर जो होता है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है ऑफरी के साथ. वो दिखने में आना चाहिए कि उनको रिलेशनशिप बिल्ड करना है. ओके, जो लीगली ऑब्लाइज्ड हो, जैसे कि हमने लिखा है, लीगली ऑब्लाइज्ड भी होना चाहिए. ओके, इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लीगली ऑब्लाइज. क्यों? क्योंकि आप उसको एनफोर्स कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो लीगली ऑब्लाइज होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए जो आप एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट में जाके. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स. अभी हियर यू कैन सी कैन नॉट कंटेन कंडीशंस इज व्हाट दे आर सेइंग, बट इट इज conditional in general. This statement is conditional. अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि it might put forward a condition but the other person might need to accept that condition. अगर समझो A ने condition डाला है B पे कि आप ये करोगे तभी जाके मैं एक certain act करूँगा. B says कि okay, I will do this act and then you have to provide me this. So it is like that. The proposal can have condition and the condition needs to be accepted. Okay. Sorry. Okay. Now we have the sixth one. Communicated to the offeree. Similar to the फर्स्ट वन. इफ आई एम सेइंग कि ऑफरी को समझ में आना चाहिए कौन से मैनर में आप बता रहे हो. एक्टेड अंडर द नॉलेज दैट द ऑफर एग्जिस्ट. ओके, ऑफरी को पता होना चाहिए कि ओके दिस इज द ऑफर एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट एंड दिस इज आई हैव टू गिव इट और वट सब कुछ ये ऑफरी को पता होना चाहिए. एवरीथिंग दैट द ऑफर कंसिस्ट वो ऑफरी को पता होना चाहिए. नेक्स्ट, मेड टू अ सर्टन पर्सन. ओके, नाउ प्रपोजल ऑफर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन्विटेशन टू ऑफर तो जनरल ऑफर हम देख सकते हैं, वो जनरल पब्लिक को बनाया जाता है, बट इट इज मेड टू पीपल. ओके, सो हियर दे आर सेइंग कि प्रपोजल शुड बी मेड टू अ सर्टन पर्सन. इट कुड बी ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल. ओके, प्लस ग्रुप ऑफ पीपल कैन ऑल्सो बी हियर. नेक्स्ट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. मतलब ऑफर एकदम क्लियर कट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस, मतलब डाउटफुल नहीं होना चाहिए. ऐसे मतलब कि अच्छा ये है क्या, इसमें ये है कि नहीं. इट शुड नॉट ब्रिंग अ क्वेश्चन मार्क टू द ऑफरी. ओके, नेक्स्ट, proposal expressed or implied. Similarly, these 3 points are so much similar to each other. Proposal expressed or implied, written, orally, conduct, expressed या implied होना चाहिए. तो बहुत easy है to understand. Okay, now let's understand cases. Now आप ये पॉइंटर देख सकते हो, 3 मुझे कहना है. This 3 goes to the 3 of this valid point. Okay, case क्या है? Weeks versus Tybolt. A man made a declaration during a party that I am going to pay $100 to person who marries my daughter. The sum was later claimed by a boy who was present there on that day and subsequently married the girl. It was held that there was no question of contract because there was no offer made. The court said that it was merely a statement without any intention to seek anybody's assent. क्या थर्ड पॉइंट है हमारा? Made with an intention of obtaining the assent of the other. इधर क्या हुआ? वो फादर ने जो है वो स्टेटमेंट बोल दिया सिर्फ. It was a mere statement कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसको $100 मिल जाएगा. It was a mere statement. It was never a question. Okay, is the reason why this was never held as a contract. Okay,
इंटेंशन की ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, मतलब कि वो पहली बात ये एक सर्टन पर्सन को भी नहीं बनाया गया है, एम आई राइट? इट डू नॉट मीन टू सर्टन पर्सन, जस्ट अ जनरल लिस्टिंग, अ पर्सन हैज जस्ट मेड अ मियर स्टेटमेंट, ओके? इधर ना ही वो फादर ने उस बॉय का कंसेंट लिया, अच्छा तू शादी कर ले मेरे बेटी से, तुझे मैं 100 पाउंड दे दूंगा, नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, दैट्स द रीजन व्हाई दिस केस हैज कम। नेक्स्ट वी हैव बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, ये अभी पॉइंट 4 के लिए है, ओके? अ कपल वर एंजॉइंग द वेकेशन इन इंग्लैंड, व्हेन इट वाज टाइम फॉर देम टू रिटर्न टू देयर होम, द वाइफ टुक इल, वाइफ हो गई बीमार, हस्बैंड बोला कि मैं आगे चला जाता हूँ, मुझे काम है, तू इधर ही रह ले इंग्लैंड में, मैं तेरे को पैसे भेजते रहूँगा सो दैट तू ठीक हो जा और फिर तू वापस श्रीलंका ट्रैवल कर। अभी वो पैसे भेजने लगा कितने, 30 pounds every month for the purpose of care and maintenance. The wife agreed और वो stay back कर ली इंग्लैंड में। However, he did not send her the money. The wife filed a case for the breach of contract. The court stated that there are many instances in our day-to-day lives of offer and their acceptances which are of social nature, where the parties do not intend to invite any legal obligation. Hence, the husband need not pay the money because there was no valid offer from the contractual viewpoint. मतलब fourth point क्या था? Intention to create a legal relationship. Here the husband didn't have an intention to create a legal relationship with his wife. It was just for the sake of love that he said कि मैं पैसे भेजूंगा। अभी the legal relationship कुछ नहीं हुआ वो पैसे भेजने का, am I right? They are not some worker to each other or some person who is making a contract with each other, नहीं, he just said कि मैं आपको भेज दूंगा, तो वो काउंट नहीं होता है, ओके? देयर शुड बी अ लीगल रिलेशनशिप मेड बिटवीन द ऑफरर एंड द ऑफरी, ओके? इवन इफ उधर एक्सेप्टेंस हुआ, उसने वाइफ अग्री की, सब कुछ हुआ, बट स्टिल नो लीगल ऑब्लिगेशन एक दूसरे के ऊपर नहीं था। Now, similar to the fourth point, we have another case, Kalai Haldar versus Sheikh. A man invited his friend over for dinner. However, the friend did not turn up. A case was filed against him for the cost of the unconsumed food. It was held that such social offer do not result into a binding contract because they are not made with the intention of creating a legal relationship. मतलब कि आपको कितना पता होना चाहिए कि ये legal relationship है या नहीं है, क्या आप legal relationship create कर रहे हो इस person के साथ या नहीं. It was just a mere invitation to that person कि आप आ जाओ, मैं नंबर बना के रखूँगा, वो नहीं आया. It doesn't mean that you have created a legal relationship with your friend over here, okay? अभी सोशल ऑफर देखो, इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ को सोशल ऑफर, दे आर मेड विदाउट एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ओके? Therefore they do not result in a legally binding contract between the parties and breach of such a commitment is not actionable, okay? So ये दोनों केसेस में क्या हुआ, these both cases had social offer, okay? There was social offer, मतलब morally offer किया गया चीज़ है, am I right? There was moral intention over here, not legal. लीगल किधर भी इधर इंटेंशन नहीं था, मोरल इंटेंशन था, ओके? अभी वी हैव अनदर पॉइंट्स, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर. एम्बिग्यूटी इन द प्रपोजल विल लीड टू डिस्प्यूट जो इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकता है. The proposal made had to be clear and whatever terms and conditions attached therewith have to be expressed in such a way. मतलब देखो मैंने बताया कि कंडीशन अगर आप डाल रहे हो तो वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए उस वे में और एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए एक दूसरे को. मेड टू अ सर्टन पर्सन, मतलब स्पेसिफिक ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन, जैसे कि बोला अभी हम बात करते हैं जब इन्विटेशन टू ऑफर की, वो तो सबको जनरल ऑफर, बट दे आर टू द पीपल हु हैव रेड इट, हु हैव यूज्ड इट एंड हु विल फर्दर हैव एनी कंप्लेंट ऑन इट, कैन मेक अ केस ओवर, ओके? तो देखो इधर क्या पर्सन मतलब कौन कौन इंक्लूड होता है, एनी पर्सन, फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी, गवर्नमेंट, जो आइडेंटिफाई कर सकते हो वही. और आप इधर देख सकते हो जनरल ऑफर जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, बट स्टिल दीज आर पर्सन एंड इट इज काउंटेड एज पीपल, ओके? अभी हम आते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर, एक्सप्लेनेशन. इन द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसेंट, जब हम बात कर रहे हैं विलिंगनेस टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर, व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर, हम इधर बात कर रहे थे, टू हुम द प्रपोजल मेड और फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एसेंट टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर. अभी रूल्स है कुछ एक्सेप्टेंस के, ओके? वो रूल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है अभी हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस के भी सर्टन रूल्स है कि कैसे हम एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ओके? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब अनक्वालिफाइड मतलब एज इट इज़, ओके? टोटलिटी में एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्शियल एक्सेप्टेंस अलाउड नहीं है, ओके? पहले तो बात कि ये कि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कि वो किसी वे में ऑफरर को भी समझ में आना चाहिए कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर, ओके? अभी हम काउंटर ऑफर का केस देखते हैं, नील वर्सेस मेरिट. ऑफर कम्युनिकेट्स कंडीशनल और पार्शियल एक्सेप्टेंस, सॉरी कंडीशनल और पार्शियल एक्सेप्टेंस हम अभी बात कर रहे हैं. मतलब लेट्स से कि एक्स और वाई के बीच में कुछ ये चालू है, ऑफर चालू है, एक्स ने वाई को ऑफर किया कुछ, तो अभी वाई जब एक्सेप्टेंस करने जा रहा है वो बोलता है कि नहीं मुझे ना तेरा ये वाला ऑफर कुछ पसंद नहीं आया, मैं ना सिर्फ तेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और उसके ऊपर तू ये मुझे देना चाहिए ब्रो, मुझे ऐसा लगता है. अभी क्या हो गया कि वाई ने एक पार्शियल एक्सेप्टेंस किया, बोला कि मैं तेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑफर ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सेकंड हाफ नहीं एक्सेप्ट कर रहा, और मैं एक कंडीशन भी डाल रहा हूँ उसके ऊपर. अभी नाउ एक्स हैज़ द राइट टू ईदर एक्सेप्ट द कंडीशन एंड एक्सेप्ट कि अच्छा ठीक है कि अच्छा मैं ये कंडीशन फुलफिल कर दूंगा, अच्छा देखो ये फर्स्ट हाफ चाहिए तो ठीक है विल एडजस्ट और चेंज द ऑफर दैट वे. बट इफ एक्स ने डिसाइड किया कि मुझे नहीं चाहिए, दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सेप्टिंग, सो इट बिकम्स नॉट वैलिड. और एक काउंटर ऑफर, हम पार्शियल एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो जाता है, काउंटर ऑफर दे दिया ना बंदे ने कि मैं तेरा फर्स्ट हाफ एक्सेप्ट करूँगा, तेरे को ये है क्या. नाउ व्हेन वाई मेक्स कंडीशन और पार्शियल एक्सेप्टेंस, एक्स हैज़ द राइट कि
वो येस या नो बोल सकता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है इधर। दिस बिकम्स लाइक अ काउंटर ऑफर ना, एक नया ऑफर आ जाता है, अच्छा कंडीशन भी डाला और ऑफर भी एक अलग आया थोड़ा सा। देन व्हाट एक्स प्रपोज्ड, एक डिफरेंट ऑफर आया जो वाई ने प्रपोज किया। सो दैट इज वाई एक्स हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वाई भी बोल सकता नहीं तेरे ऑफर को तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अभी तुम मैंने थोड़ा सा एक कंडीशन डाल दिया, बट नहीं, इट कंप्लीटली चेंजेस द रिलेशनशिप। ओके, सो बार्गेनिंग जैसे एक चीज़ होती है, वो एक कंटिन्यूस ऑफर, एक काउंटर ऑफर जैसी चीज़ होती है, जिधर व्हेन द अदर पर्सन बार्गेन्स, तुम नहीं बोल सकते अच्छा मैंने अभी 200 बोल दिया, अभी तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अभी तुम रेडी थे सेल करने के लिए, अभी तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, इफ अ पर्सन हैज सेड कि ओके मैं ये 300 को बेचने के लिए रेडी हूँ, तुम बोल रहे हो सामने से कि मैं नहीं, मैं 200 को खरीदूंगा, और तुम 200 दे दोगे, पर सामने वाले पर्सन ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओके आई एम रेडी टू सेल इट एट 200। दिस इज हाउ बार्गेनिंग ऑल्सो कम्स एज अ पार्शियल एक्सेप्टेंस। बट द सामने वाला पर्सन अगर एक्सेप्ट करता है कि अच्छा 200 में बेच रहा हो, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इधर जब ये होता है ओरिजिनल ऑफर, बार्गेनिंग के वक्त ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, अनटिल द पर्सन इज नॉट रेडी, नहीं मैं 200 में नहीं बेचूंगा, 300 में लेना है तो लो, ये तो जाओ, तो तुम अगर 300 ले रहे हो तो तुम ले लेते हो, दैट इज द ओरिजिनल ऑफर स्टिल स्टैंड्स। ओके, अभी देखो नीड और मेरिट में क्या हुआ था। एक्स वांट्स टू सेल अ हाउस एट $280, वाई वांट्स टू बाय एक्सिस लैंड, वाई पेज एडवांस ऑफ $30, एक्स लेटर रिफ्यूजेस टू सेल, कोर्ट एक्सेप्टेड एज नॉट कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, वाई एक्सेप्टेंस वॉज कंडीशनल, इनवैलिड। क्यों इनवैलिड हुआ, लेट्स एक्सप्लेन। अभी एक्स ने क्या बोला था कि मैं तुझे मेरा हाउस $280 में बेचने के लिए रेडी हूँ। वाई ने क्या किया, वाई ने एडवांस दिया $30 का। एक्स ने एक्सेप्ट किया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स का वो ऑफर ही नहीं था। एक्स का ऑफर था तू मुझे 280 पाउंड्स दे, मैं तेरे को ये हाउस सेल करने के लिए रेडी हूँ। बट वाई ने खुद ही का कंडीशन डाल दिया, खुद ही एक्सेप्टेंस उसने पार्शियल कर दिया, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स। नाउ इधर बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि ऑफर एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। हर एक वक्त तुम जाओगे और बोलोगे कि अच्छा, अभी समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स सिमिलरली लेते, एक्स ने एक ऑफर किया वाई को, वाई बोला मैं टाइम लूँगा, ये आया 1 साल बाद, भाई अच्छा तूने वो ऑफर डाला था वो मुझे अभी चाहिए ना, एक्स हैव ऑलरेडी सोल्ड व्हाटएवर द ऑफर वाज, तभी एक्स को ये नहीं बोल सकता नहीं तूने मेरे को डिसाइड किया था सेल करने का, अभी मेरे को चाहिए। नो, देयर इज अ टाइम लिमिट ओके फॉर दैट प्रिस्क्राइब्ड एक्सेप्टेंस। ना अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना डिटेल है कि उन्होंने मतलब बताया है कि टाइम लिमिट कितना है किसको। ओके, विल फर्दर अंडरस्टैंड कि कितना किसको क्या टाइम लिमिट है। ओके, standing offer comes with a time limit prescribed for acceptance. The proposal getting lapsed only arises if the proposer while making the offer has prescribed a deadline before which the offer has to be accepted. मतलब एक्स ने बोला देख तेरे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे बता तेरे को ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। वाई बोला 10 दिन के बाद कि मुझे ये चाहिए, नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स ने ऑलरेडी बता दिया क्लियर कट कि 2 दिन में बता भाई मेरे को, बट वैसे नहीं है। सो इधर जैसे ही मैंने बोला 1 ईयर, तुम बोलोगे अरे एक्स ने तो उधर टाइम लिमिट नहीं दिया था तो 1 ईयर तो ठीक है, नहीं क्यों, क्योंकि रीजनेबल टाइम जैसी चीज़ भी होती है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को भी देख के रीजनेबल टाइम डिसाइड किया जा सकता है। ओके, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, म्योर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। मतलब क्या कि आप मन में ही बोलोगे कि भाई चल मैं ये लेने के लिए रेडी हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं हो जाता कि आपके लिए वो सेपरेटली रखा जाएगा, आपको वो एक्सेप्टेंस कन्वे भी करना पड़ेगा। जैसे कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, एक्सटर्नल इंडिकेशन है, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, सम ओवरटैक, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने कुछ एक्सेप्टेंस किया है, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर को कम्युनिकेट करना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस। साइलेंस कैन नॉट बी अमाउंटेड टू एक्सेप्टेंस, मतलब इधर एक्सेप्टेंस के लिए आप साइलेंट नहीं रह सकते, आपको बोलना तो पड़ेगा ही कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ या मैं ये रिजेक्ट करता हूँ। ओके, सिमिलरली अगर एक्सेप्टेंस अगर एक साइड से वैलिड नहीं है, मतलब वाई ने मेंटल एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्स को पता ही नहीं है इसलिए एक्स ने किसी और को छोड़ दिया, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वाई ने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया और एक्स ने अज्यूम कर लिया कि अच्छा इसने तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये साइलेंट रहा, तो भी नहीं चलेगा। द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू यू, देन ओनली द एक्सेप्टेंस वुड बी कैलकुलेटेड। ओके, The plaintiff wrote to his nephew, अभी केस का नाम है Feldhaus versus Binley. The plaintiff wrote to his nephew on 2nd January, offering to buy him horse for 30 pounds, saying, if I hear no more about him, I consider the horse mine at that price. मतलब क्या होता है कि एक बंदा जो प्लेंटिफ होता है वो अपने नेफ्यू को बोलता है कि ये हॉर्स मुझे है ना तू 30 पाउंड्स के लिए दे दी, अगर मैं तेरे से कुछ सुना नहीं, तूने कुछ मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये हॉर्स मेरा है। ठीक है, नो आंसर वॉज मेड टू दिस लेटर, बट द नेफ्यू टोल्ड द डिफेंडेंट द ऑक्शनर टू हुम द हॉर्स वॉज इंटरेस्टेड फॉर सेल नॉट टू सेल द हॉर्स। मतलब जिसको उसने लेटर भेजा, प्लेंटिफ ने उसके नेफ्यू को लेटर भेजा, नेफ्यू ने कुछ ऑफकोर्स आंसर नहीं डाला, उसने एक्सेप्ट किया, बट वो बेचने वाले जो इंसान था उसको बोल दिया अच्छा तू है ना ये घोड़े को मत बेच, ये मेरे अंकल को बेचने का। ठीक है, पर क्या हो गया, वो ऑक्शनर ने किसी और बंदे को बेच दिया। अभी क्या हो गया, प्लेंटिफ ने स्यू कर दिया डिफेंडेंट को कि मैंने बोला था कि मेरे को हॉर्स रखने के लिए, बट तुमने नहीं रखा, ऐसे कैसे, तुमने एक्सेप्टेंस किया था। इट वॉज हेल्ड दैट ऑफर रिमेन्ड ओपन एंड दैट नथिंग वॉज डन टू कम्युनिकेट द इंटेंशन टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड देयरफॉर देयर वाज नो एक्सेप्टेंस। मतलब इधर कुछ एक्सेप्टेंस नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हुआ एक्सेप्टेंस का, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड नहीं करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू 4th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंडीशनल। अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल। ओके, मतलब एक इंसान अगर तुम्हें कंडीशन डाल के एक्सेप्टेंस करता है कि अच्छा मैं एक्सेप्ट करता हूँ पर तुझे ये करना पड़ेगा, वो बिकम्स एक एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये अगेन अ डिफरेंट ऑफर स्टैंड किया जाता है। Where an acceptance of an offer is made conditional on the execution of formal contract, there is no binding agreement until such formal contract has been drawn up and signed. Section 7 states the same. मतलब कि सामने वाले पर्सन एक्सेप्ट जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है उसका,
वो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक ये बाइंडिंग नहीं बनता। ओके इधर इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट ड्रॉन अप एंड साइन, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ सेइंग, ऐसे काइंड ऑफ कि वो पर्सन ने एक्सेप्ट करना चाहिए तुम्हारा कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ओके टिल देन इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कि ऑफरी ही एक्सेप्टेंस करना चाहिए, या ऑफरी ने किसी को अगर एक ऑथराइजेशन दिया कि तुम मेरे मतलब मेरे बिहाफ में आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, जैसे कि अपन बोलते हैं ना पावर ऑफ अटर्नी, वैसे टाइप्स में, तो वो लोग तुम्हारे बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता। नाउ दिस पॉविल वर्सेस ली का केस अपन देखते हैं। पॉविल ने ना जो हेडमास्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया रहता है, तो अभी वो लोग ना डिसाइड करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए ना वो उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, और फिर है ना वो लोग ना एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि किसको हेडमास्टर बनाना चाहिए। ओके स्कूल के मैनेजर जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि किसको बनाना चाहिए, और ना ये इसमें होने के अनऑफिशियली है ना ये लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम पॉविल को बना देंगे। बट क्या होता है कि पॉविल ना बाहर खड़ा रहता है, और वो ना एक उधर ना एक वर्कर होता है, उसको पूछता है अच्छा किसको सिलेक्ट किया, किसको किया, वो वर्कर बोलता है अरे तेरे को ही किया है सिलेक्ट, ऐसे काइंड ऑफ। ओके तो क्या हो जाता है कि बाद में पता चलता है कि पॉविल को सिलेक्ट नहीं किया जाता, किसी और ही पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। इधर हेल्प किया गया कि जिसने जो वर्कर था जिसने बताया कि तुझे सिलेक्ट किया गया है हैड नो अथॉरिटी टू टेल टू पॉविल दैट ही सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। ओके सो हियर देयर बिकम्स नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके देखो देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द पर्सन हु इन्फॉर्म पॉविल हैड नो अथॉरिटी टू मेक दैट अनाउंसमेंट। समझ में आया? सो पॉविल कुडंट क्लेम डैमेजेस। ऑफिशियल कम्युनिकेशन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन इज नेसेसरी। समझ में आया? तो अब किससे आप कंफर्म कर रहे हो वो भी मैटर करता है। पर्टिकुलर पर्सन हैज टू स्पेशली कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्शन हो जाता है जनरल ऑफर के ऊपर। कार्बन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हम लोग ने पिछले पार्ट में जब डिस्कस किया था उसमें जनरल ऑफर रहता है, इधर एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्शन है ये जनरल ऑफर। समझ में आया? रिमेंबर दिस। योर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन वुड नॉट बी वैलिड एक्सेप्टेंस। ना हम लोग ने पिछले बार ये हार्वी वर्सेस स्पेसी का केस किया था, जिधर वो बम्पर हॉल पेन करके रहता है, जिधर वो बंदे को बोलता है कि तुम मुझे तुम्हारा प्राइस बताओ बम्पर हॉल पेन का, वो सामने वाला बंदा बताता है कि ये इतने इतने का है, और फिर वो उसके बाद कुछ नहीं होता है, वो बोलता है अच्छा मुझे लगा तुमने प्राइस बता दिया, मतलब मुझे समझ में आया कि आप मुझे रेडी हो वो पेन बेचने के लिए। ऐसा नहीं होता है, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। A mere statement doesn't cause acceptance. There has to be proper reply given to the proposal made which is capable of being interpreted as response to the offer. समझ में आया? इट शुड नॉट बी जस्ट कि तुमने साइलेंटली खुद के दिमाग में सोच लिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ना ही एक मेरा स्टेटमेंट बना दिया, या एक फनी जोक के हिसाब से बता दिया अरे मैंने तो जोक मारा था तुझे समझ में नहीं आया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नॉट वैलिड। ओके एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय अ सर्टन पर्सन। कार्बन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मेंशन अबाउट, जैसे हमने बताया वो बंदी जब ही एक्सेप्टेंस करती है तभी वो किसी को बताती है कि नहीं, पर क्या हमने बोला था जनरल एक्सेप्शन, जनरल ऑफर एक एक्सेप्शन है। ओके बट एक सर्टन पर्सन को मेड क्या करना चाहिए एक्सेप्टेंस। एन एक्ट डन इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रपोजल वुड नॉट बी एन एक्सेप्टेंस। मतलब क्या? लेट्स सी लालमन शुक्ला वर्सेस गोरिल्ला। अभी ये केस में क्या होता है मालूम है? जो एक लेडी रहती है उसका बच्चा है ना गायब हो जाता है, वो है ना उसके वर्कर को भेजती है कि जहाँ मेरे बच्चे को ढूंढ किधर गया क्या गया ऐसे काइंड ऑफ। और वो जब वो जो वर्कर रहता है वो जब भी जाता है ढूंढने के लिए तभी लेडी बोलती है कि मैं ना एक रिवॉर्ड डालती हूँ, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के निकालेगा वो उसको मैं 500 रुपीज़ दे दूँगी। ठीक है जब भी वो फिर वो वर्कर है ना उसको उसका बच्चा मिल जाता है, वो लेके आता है घर पे वापस, वो उसको दे देता है। कोई उसको बताता है अरे तुझे पता है क्या, अरे तेरे लेडी ने बताया था कि अरे उसने रिवॉर्ड रखा था तूने ढूंढ के निकाला तो तुझे 500 रुपीज़ मिलना चाहिए। सो ही सब्सिक्वेंटली ट्राई टू क्लेम दैट रिवॉर्ड, बट कोर्ट क्या हेल्प करता है मालूम है कि उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो वर्कर को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ रिवॉर्ड एग्जिस्ट करता है। सो उनका कहना है एक्ट डन इन इग्नोरेंस, मतलब जो वर्कर ने इग्नोरेंस में एक्ट किया उसको तो सिर्फ बताया गया था कि जब बच्चे को ढूंढ के आ, उसको पता नहीं था कि देयर वाज सच अ रिवॉर्ड, तो वो रिवॉर्ड वो बंदे को नहीं मिलेगा क्योंकि देयर वाज नो सच एक्सेप्टेंस। Okay, it was held that he was not entitled to the reward because an act done without the knowledge of the proposal cannot be held to be acceptance. Acceptance में भी express और implied, बहुत सिंपल एक्सप्रेस करना चाहिए, implied होना चाहिए। Similarly, acceptance must be made in prescribed manner, mode manner जो भी है तुम्हारा prescribed होना चाहिए। अगर एक इंसान ने बोला है तुम्हें कि मुझे तुम लिखित में बताओ कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्टेड है या नहीं, तो तुम्हें राइटिंग में ही देना होगा कि अच्छा I accept it or deny it. Do you understand? Whatever the offer says, you have to do it in that prescribed time, in that prescribed manner, in that prescribed place also, अगर बताया जाए तो। और अगर मेंशन ना किया गया तो एक रीजनेबल मैनर में बताने के लिए, इफ द ऑफर प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर मेथड और टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इट शैल बी इफेक्टेड इन दैट मैनर बाय सेक्शन 7 द एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस अ प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच it is to be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted and acceptance is not made in such manner, the proposal may insist that his proposal should be accepted in prescribed manner and not otherwise. This must be done with a reasonable time after the acceptance is communicated to him. Similarly, जैसे मैंने बताया जो आपको वे बताया गया है, मोड बताया गया है, मैनर बताया गया है, उसी वे में आपको मुझे आंसर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कौन सा भी नहीं लूँगा, तो वही वे में होना चाहिए, दूसरे को उसी वे में किया रहेगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके हम लोग ने 250 ऑफर कर लिए हैं, बट आपको एक चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके अभी कम्युनिकेशन और रिवोकेशन पे हम लोग आते हैं। ये इसमें क्या है मालूम है कि ये बता रहा है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए और आप उस ऑफर को रिवोक या उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कब तक कर सकते हो। समझ में आया? सो एक्सेप्टेंस टू बी कंप्लीटेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अभी कैसे कम्युनिकेशन होगा, किस वे में कम्युनिकेशन होगा और कैसे रिवोक कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम जानिए। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन द पार्टीज बिकम लीगली बाउंड। ओके व्हेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक। अभी कब ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है? ओके लेट्स सी। ऑफर मे लैप्स और कम टू एन एंड इन द फॉलोइंग वे। ऑफर मतलब जो ऑफरर ने प्रपोजल किया है। ओके अभी कैसे वो ऑफर लैप्स में आएगा, मतलब कैसे वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके
अभी बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन जो प्रपोजर है वो नोटिस दे देता है ऑफरी को कि अभी मैं मेरा ऑफर विड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं करना चाहता और इस ऑफर को कंटिन्यू, यू हैव नॉट गिवन एनी एक्सेप्टेंस, आई एम नाउ गोइंग टू रिवोक और withdraw this offer. Okay, by lapse of time, deadline has been given for acceptance, expiry of such time, offer automatically comes to an end. मैंने वैसे ही बोला 2 दिन का टाइम दिया है, मुझे बता तेरे को ये चाहिए या नहीं चाहिए, तुमने 2 दिन में नहीं बताया, lapse of time हो गया, वो ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. By death or insanity of the offeree or offerer, sorry, offerer और offeree इधर से. ओके, मतलब ऑफरर या ऑफरी का किसी का भी एक में से डेथ हो गया तो वो ऑफर स्टैंड्स टू बी कैंसिल. ओके, काउंटर ऑफर, जैसे कि मैंने बताया बार्गेनिंग में अगर किसी ने बोला मैं 300 ये 300 के लिए है, वो सामने वाला बोलता है अच्छा मुझे 200 में दे दे, 300 का ऑफर स्टैंड्स टू बी कैंसिल. ओके, ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड. ओके, और इधर काउंटर ऑफर क्या, कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसे हम लोग बात करते हैं वो भी इसको विड्रॉ कर देता है ऑफर को, पहले जो एग्जिस्टिंग ऑफर ओरिजिनल ऑफर को. बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशनल प्रेसिडेंट, मतलब इसके हमने बोला कंडीशनल एक्सेप्टेंस प्रेसिडेंट अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी ये ऑफर स्टैंड्स टू बी विड्रॉ. इवन व्हेन द ऑफर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन, मतलब समझो एक्स ने एक ऑफर डाला विद द कंडीशन एंड वाई एक्सेप्टेड कि ओके मैं कंडीशन फुलफिल करूँगा तभी तुम मुझे ऑफर दे, वाई ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया. ओके, तो फिर ऑफर स्टैंड्स टू बी कैंसल्ड इन दोनों के बीच में. ओके, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफर, मतलब अभी समझो कि एक्स ने बोला कि मैं तेरे को 1 टन ऑफ राइस मैं तेरे को डिलीवर करता हूँ. अभी क्या हो गया, उसने सी से डिलीवर किया, वो बोट टूट गई, वो राइस उसी में बह गया. अभी क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया वो सब्जेक्ट मैटर का. एक्स नाउ कैन नॉट प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ राइस टू वाई, सो नथिंग कैन बी डन बाय एक्स, इसीलिए ऑफर स्टैंड्स टू बी कैंसल्ड. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब समझो ऑफरी बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, समझ में आया, ऑफरी बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, तभी अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा है एक्स को तो ऑफर स्टैंड्स टू बी कैंसल. अगर समझो इन दोनों के बीच में जो वो एक दूसरे को सब्जेक्ट मैटर दे रहे हैं वो भी अगर इनवैलिड है, जो लॉ के अंदर नहीं आता है, इलीगल है, तो भी ये ऑफर कैंसिल हो सकता है. बाय चेंज ऑफ लॉ, सिमिलरली अगर समझो ये एक वक्त के लिए समझो हमारे इधर वेपन्स लीगलाइज है, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स को, एक वक्त के बाद बोला कि नहीं वेपन्स इलीगल है, तो ये ऑफर भी इलीगल स्टैंड किया जाएगा. नोट, द फर्स्ट पॉइंट रिवोकेशन बाय नोटिस इज इन द कंट्रोल ऑफ द प्रपोजर. सेक्शन 4 to 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन. ओके, अभी हम सेक्शन 4 पे आते हैं और सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. किस बात का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. समझ में आया, कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ के बारे में सेक्शन 4 बात करता है. नाउ before understanding what is written here, because it is a little bit difficult to understand the written part, so I will first explain you with the help of the diagram so that आपको समझ में आए, और फिर हम इसको पढ़ते हैं और फिर आपको easily समझ में आएगा कि इनको क्या कहना है. Okay, so let's come here. So now प्रपोजल मतलब जिसने प्रपोजल डाला है, और एक्सेप्टर मतलब जिसको प्रपोजल किया गया है. ओके, अभी हम इसको समझते हैं, ये प्रपोजल को समझते हैं, है रिया. ओके, और ये है अक्षय. ओके, सो नाउ रिया हैज़ प्रपोज्ड कि टू अक्षय कि मेरा एक फ़ोन है, मेरा आईफोन है, वो मैं तुझे 300 रुपीज़ में बेचना चाहती हूँ. ओके, सो नाउ रिया हैज़ नाउ पुट द प्रपोजल सेइंग कि आई एम गोइंग टू सेल यू दिस फोन फॉर 300 रुपीज़. अभी ये प्रपोजल कब पहुंचेगा एक्सेप्टर के पास, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब भी अक्षय को ये प्रपोजल के बारे में पता चलेगा. एम आई राइट? ऑफ कोर्स, जब ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, जब ही अक्षय को पता चलेगा, विच इज द एक्सेप्टर को पता चलेगा कि अच्छा देयर इज सम काइंड ऑफ प्रपोजल दैट रिया हैज़ मेड टू मी. ओके, ये कम्युनिकेशन प्रपोजल का इधर ही कंप्लीट हो गया. नाउ दे आर सेइंग कि अभी अक्षय, अभी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, अभी हम देखते हैं. जब भी प्रपोज एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, अभी हम इन जनरल वे में अगर देखने जाए तो अक्षय ने लेट्स से ये कि रिया ने उस अक्षय को टेक्स्ट किया है कि अच्छा ये मेरा फोन है 300 रुपीज़ का है, तो तू अभी ये खरीदेगा क्या. अभी अक्षय बोलता है ठीक है मैं खरीदता हूँ, एंड नाउ ही विल सेंड अ मैसेज टू रिया कि ओके आई एक्सेप्ट टू बाय योर फोन. ओके, सो अभी पोस्टेड की जगह हम लोग टेक्स्टेड लिखते हैं इधर. ओके, ठीक है, अभी अक्षय ने क्या किया, रिया को टेक्स्ट किया कि ओके आई एम रेडी टू बाय योर फोन. नाउ दिस टेक्स्ट ये अक्षय ने किया चलो 2 बजे को, ठीक है 2 PM को टेक्स्ट किया. तो नाउ द एक्सेप्टेंस अभी इसके पार चला गया, ठीक है, रिया ने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो ये कोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया. अभी अक्षय ने टेक्स्ट डाल दिया, अभी अक्षय के बियॉन्ड हो गया ये, अभी अक्षय इसको वापस नहीं ले सकता. ही कैन डिलीट द मैसेज, बट जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम सेइंग हियर कि अक्षय ने अभी टेक्स्ट कर दिया, अभी अक्षय के हाथों के बाहर चला गया एक्सेप्टेंस. नाउ रिया ने अभी पढ़ लिया 3 बजे. ओके, रिया ने पढ़ा 3 बजे, तो रिया को पता चल गया कि अच्छा एक्सेप्टेंस हो गया है. रिया ने 3 बजे पढ़ा, मतलब रिया को 3 बजे एक्सेप्टेंस मिल गया, ठीक है. बट एक्चुअली देखने जाए तो रिया को एक्सेप्टेंस 2 बजे ही मिल गया था. सो इवन इफ रिया रेड द एक्सेप्टेंस एट 3 PM, द एक्सेप्टेंस इन जनरल वाज डिलीवर्ड एट 2 PM. सो इन जनरल अगर कोर्ट में देखा जाएगा तो एक्सेप्टेंस 2 PM काउंट किया जाएगा. ओके, दिस इज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का ये. अभी एक्सेप्टेंस जब ही प्रपोजल तक पहुंचता है तभी, ठीक है. नाउ लेट्स सी, नाउ रिवोकेशन की बात आती है. नाउ इफ रिया वांट्स टू रिवोक हर प्रपोजल, रिया कब रिवोक कर सकती है. रिया के पास अभी रिवोक करने का टाइम कब है मालूम है. रिया ने डाला प्रपोजल, रिया के पास इधर से लेके इधर तक ही टाइम है. ओके, ब्लैक लाइन इज व्हेन रिया कैन रिवोक हर प्रपोजल. मतलब रिया ने डाला अक्षय को, अभी अक्षय ने कब पढ़ा वो पता नहीं, बट स्टिल शी हैज़ टाइम टू रिवोक, शी कैन डिलीट द मैसेज और व्हाटएवर इफ यू हैव टू से, कि वो कर सकती है.
ओके और जब अभी अक्षय ने पढ़ भी लिया तभी भी जब तक अक्षय का एक्सेप्टेंस आया नहीं है तब तक रिया रिवोक कर सकती है। जैसे ही अक्षय ने 2 बजे मैसेज डाल दिया कि एक्सेप्टेंस हो गया है, सो जैसे ही अक्षय ने मैसेज डालने से पहले दैट टू लाइक लेट्स टेक 1:59 PM, रिया के पास इतना ही टाइम है रिवोक करने के लिए। सो रिया कैन रिवोक टिल दिस टाइम। समझ में आया ना? व्हेन कैन अक्षय रिवोक? अभी अक्षय को उसका एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो अक्षय कब कर सकता है? रिया ने पढ़ा 3 बजे, ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस कब सॉरी रिवोक एक्सेप्टेंस रिवोक कब तक कर सकता है? 2:59 PM तक, जब तक रिया तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं पहुंच जाता। सो टिल व्हेन उसको टाइम कितना तक है मालूम है? इधर तक, इधर से स्टार्ट हुआ, ही कैन रिवोक फ्रॉम दिस टिल इट रीचेस रिया। ओके, जब तक रिया पढ़ नहीं लेती तब तक। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाहती हूँ मैं। लेट्स रीड। ओके, द मोमेंट द ऑफरी पोस्ट्स, अभी इधर मैंने पोस्टर लिखा है टेक्स्टर जैसे ही, द मोमेंट द एक्सेप्टर या ऑफरी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय हिज ऑफर। मतलब जैसे ही अक्षय ने इधर टेक्स्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया, रिया बाउंड हो गई वो ऑफर से। नाउ रिया कांट रिवोक, रिया कांट से कि नहीं भाई मुझे अभी ये प्रपोजल नहीं डालना है। ओके, एंड द एक्सेप्टर हैज टाइम टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, जैसे कि हम देखते हैं एक्सेप्टर हैज टाइम टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस टिल इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब तक उसको इतना, मैंने जैसे ही बोला इधर तक अक्षय को टाइम है, जब तक वो रिया तक नहीं पहुंचता। दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से हियर, बट इट इज थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब प्रपोजर का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस मतलब इन व्यू ऑफ प्रपोजर, पीओवी ऑफ प्रपोजर के हिसाब से जा रहा है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर हियर, मतलब पीओवी ऑफ प्रपोजर। कब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है? व्हेन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, मतलब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये जब ये जो एरिया है ना, ये पीरियड, ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, हिम मतलब प्रपोजर इटसेल्फ, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब अभी जैसे ही इसने टेक्स्ट कर दिया, ये अक्षय के हाथ से बाहर चला गया। अभी एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब पीओवी ऑफ द एक्सेप्टर, अभी हम इस साइड से देखेंगे। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मतलब जब तक ये इधर नहीं पहुंचता तब तक अक्षय हैज टाइम दैट वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट करने का, मतलब सॉरी एक्सेप्टेंस जब भी इधर पहुंचेगा तभी वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। ओके, अभी रिवोकेशन के लिए एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट मतलब प्रपोजर। अभी पीओवी ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अ पर्सन हु इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। एंड देन देयर इज सेक्शन 5 व्हिच टॉक्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस, व्हिच इज सिमिलरली, मैंने रिवोकेशन भी समझा दिया और आपको कम्युनिकेशन भी समझा दिया है इसी पार्ट में। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ हेरून बीबी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी इधर ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द प्रपोजर हियर इज द इंश्योरेंस कंपनी, ओके, एंड द एक्सेप्टर हियर इज हेरून बीबी। ओके, नाउ अभी कैसा होता है, हेरून बीबी ने ना एक ये लिया रहता है, इंश्योरेंस लिया रहता है। अभी उसका ना इंश्योरेंस खत्म होने आया रहता है, खत्म हो गया रहता है, एक्चुअली खत्म हो गया रहता है। सो नाउ ही इज गोइंग टू पे हिज व्हाट, ही इज गोइंग टू पे द मनी, द क्लेम करने के लिए प्रीमियम, प्रीमियम जो होता है वो अभी पे करता है। प्रीमियम जो है वो लेटर करता है, इसके अंदर पोस्ट रहता है अभी के टाइम पे ना, तो प्रीमियम है ना पोस्ट करता है। तो नाउ ही इज पोस्टेड द प्रीमियम, एंड जैसे ही वो पोस्ट करता है उसके बाद ही इसका डेथ हो जाता है। ओके, ही डाइज। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अभी ये हो जाने के बाद इनके बीबी बच्चे आते हैं और बोलते हैं अभी हमें इंश्योरेंस का क्लेम दे दो ना, वी हैव पेड द प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सॉरी हमें लेटर मिला ही नहीं, इसीलिए हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। व्हाट डिड द कोर्ट से हियर इज दैट एक्चुअली आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे इंश्योरेंस टू हेरून बीबीज फैमिली, बिकॉज कि मैंने जैसे कि समझाया इंश्योरेंस का रिवोकेशन का टाइम कब तक था, जब तक वो लेटर पोस्ट नहीं करता तब तक। अभी उसने पोस्ट कर दिया है, इट हैज गॉन आउट ऑफ द हैंड ऑफ हेरून बीबी नाउ, अभी इसका एक्सेप्टेंस इसके आउट ऑफ द हैंड हो गया, तो नाउ इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे द अमाउंट टू हेरून बीबी। दैट इज द केस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल वीडियो। थैंक यू।